Happy Teachers Day, sir. Happy Teachers Day to all of you. And thank you for have joined till now. Anyway, today is the introduction class on the engineering thermodynamics. And I am Dr. Basant Agrawal. And I will take this introduction part. So, here is the presentation. So, so this is a prerequisite of the subject. So one should have a basic knowledge of high school physics and chemistry. Physics और chemistry में पढ़ा होगा आप लोग ने. Second, ability to do calculus, that is differential, integration, partial derivative, and exact differential. And third, you should be interested in higher education and thermodynamics. So these are the basic three requirements of the subject. Then learning objective. What is the today's learning objective? आज हम क्या सीखने वाले हैं ये बताया हुआ है यहाँ पे कि learning objectives क्या है. What are the today's learning objectives? So first is we shall define the thermodynamics and what is the macroscopic and classical thermodynamics. Then originator of the thermodynamics, from where the thermodynamics came, what is the history behind that, necessity of studying thermodynamics. Then define some terminologies. These are the terminologies we will define. And at the end of the lesson, you should be able to define thermodynamics, differentiate between macroscopic and microscopic approaches, differentiate between control volume and fixed quantity approach, define thermodynamic state system, change of path, process cycle, and then finally differentiate between open, closed and isolated systems. तो ये आपको आना चाहिए. Anyway, just starting with this is one of the famous movie on the basic laws of thermodynamics. This is one of the famous movie on the basic laws of thermodynamics. It gives the ideas of the basic laws of thermodynamics. It is not Indian movie. In India, we are having one more movie in which thermodynamic equations are used. I think most of you know that who is this person and the name of the movie. This is Boman Irani. Boman Irani from the. Yes, sir. Yes. तो इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन लिख रहा है. ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है दिस इज थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस. तो ये अपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एंट्रोपी से रिलेटेड है. ये भी पढ़ना है. नेक्स्ट कमिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट क्लास 11th में. इन क्लास 11th एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री. इन दोनों में आप लोग ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, है ना. एक ये यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरी यूनिट थी थर्मोडायनेमिक्स पे, एक्सक्लूसिवली यूनिट थी थर्मोडायनेमिक्स पे, और ये तीसरी
केमिस्ट्री में थी यूनिट, ये यूनिट, सॉरी प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गई क्या? यस सर। एंड जो थर्ड यूनिट थी ये केमिस्ट्री में थी। थर्ड यूनिट केमिस्ट्री में थी, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आप लोग ने। तो थोड़ा सा यही जो इंट्रोडक्शन है यही से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग से यही सवाल पूछूंगा मैं थोड़ा सा कि आप लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता है, और फिर इसके बाद मैं आगे शुरू करूंगा सब्जेक्ट। तो कौन बताएगा इसके बारे में, क्या है ये? अभिनव नामदेव। थोड़ा सा ये चलाने में दिक्कत आ ही जाती कहीं ना कहीं। अभिनव नामदेव है? हेलो, अभिनव नामदेव है नहीं है? अजय सिंह, अजय सिंह आर यू देयर? हाँ, क्या बता रहा है, ये यस पढ़ा सर। था आप लोगों ने 11th में? सर मेरे को शो नहीं हो रहा है, पता नेटवर्क इशू है। सिर्फ मेरे को ये पता प्रेजेंटेशन है और कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अजय के बाद कौन है? अमित रघुवंशी। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मेरे साथ क्या हो। अमित रघुवंशी है? हाँ, क्या क्या बता रहा है यस सर। इसमें? हाँ, क्या बता रहा है इसमें, आप कुछ बताइए। पढ़ा हुआ है ना सर 11th? प्लीज रिपीट, आपने क्या बोला? अब ये स्लाइड दिख रही है आपको, हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड दिख रही है? यस सर। सर तो स्लाइड तो क्या दिख बता रहा है रही है। इसमें? 11th क्लास की है ना किताब? 11th पढ़ के आए होगे आप? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हाँ सर। सर टेम्परेचर के बारे में, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं मैटर का। तो मतलब सर थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो सर पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर टेम्परेचर एंड हीट के बारे में मतलब बताया हुआ है। नहीं, एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं और ये इसके बारे में नहीं है। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। सर आपकी आवाज लैग कर रही है सर, मतलब। आप गलत बता रहे हैं, आप ठीक से नहीं बता रहे हैं। क्या अरहम भंडारी? यस अरहम सर। भंडारी, यस। यस सर। बता पाएंगे क्या है ये? अरहम भंडारी, हेलो, आप वहाँ हैं? यस सर। कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? यस सर। सर। हाँ सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलिए। सर टेम्परेचर के बारे में बता रहे हाँ, हैं क्या बता रहा है? सर कि बॉडी, कोई पर्टिकुलर बॉडी का मतलब उसका गर्म या ठंडा होने का मतलब होता है टेम्परेचर। इधर साइड में स्लाइड में। नहीं, आप तो क्यों नहीं बता पा रहे? 11th पढ़ के आए हो। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, कितना गर्म है। इट इज ए रिलेटिव हाँ टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आप लोग ने, बहुत 5th 6th में भी पढ़ाते हैं ये तो। कि ना, एक गर्म बर्तन ले लो, एक ठंडा बर्तन ले लो,
एक गर्म बर्तन में हाथ डालो, दूसरा हाथ गर्म बर्तन में हाथ डालो, और फिर दोनों को लेकर के आप वार्म वाले बर्तन में हाथ डालोगे, तो जो गर्म वाला हाथ है, जिस जो बर्तन गर्म वाले हाथ में था उसको ठंडा लगेगा, और जो ठंडे वाले बर्तन में हाथ था वो उसको गर्म महसूस होगा। सो टेम्परेचर जो है वो रिलेटिव मेजरमेंट है कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, ये इट इज रिलेटिव मेजर। ठीक है, ये रिलेटिव मेजर है, और इसके ऊपर बताया हुआ है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बता पाए, इट इज सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि हम लोग बहुत समय से पढ़ते आते हैं, और इसी के आधार पे जो है, जो कप है, यहाँ पे आपको कप दिख रही होगी, ये कप जो है, ये ग्लास है, ग्लास में क्या है, आइस, ग्लास में आइस है, और कप में कॉफी है या चाय है। तो इस चाय से क्या होगी, हीट फ्लो करेगी एटमोस्फेयर में, हीट विल फ्लो फ्रॉम टी टू एटमोस्फेयर, और यहाँ पे क्या है, हीट विल फ्लो फ्रॉम एटमोस्फेयर टू ग्लास, एटमोस्फेयर से ग्लास में जाएगी हीट, हीट जो है एटमोस्फेयर से ग्लास में जाएगी। तो हीट जो है कौन से डायरेक्शन फ्लो करती है, तो हमेशा हीट जो है, जैसे अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कभी प्रोटॉन फ्लो नहीं करते, वैसे ही हीट फ्लो करती है, कभी कोल्डनेस फ्लो नहीं करती। हीट हमेशा फ्लो करेगी, कोल्ड कभी फ्लो नहीं करेगा। तो हीट जैसे कप में है, तो हीट कप से निकल करके एटमोस्फेयर में जाएगी, क्योंकि एटमोस्फेयर ठंडा है, और वहीं पे जब आइस है, तो ऐसा नहीं कि ठंडा इसमें से बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जो हीट है एटमोस्फेयर से वो गिलास में जाएगी। इट इज द हीट दैट फ्लोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड नॉट द कोल्डनेस। ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि तब तक फ्लो करेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक बराबर ना आ जाए, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपकी वॉइस बहुत लेट कर रही है। वॉइस लेट कर रही है, इसके लिए मैं क्या करूं, अब बताइए। सर हमें हमें तुम्हारे कनेक्शन में दिक्कत है कुछ। इंटरनेट इश्यूज में वही बता रहा हूँ। हाँ, सही आ रही है वॉइस। इंटरनेट इश्यूज का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। देखता हूँ मैं, अगर इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर यूट्यूब पे चैनल पे डाल सका तो डाल दूंगा। आज का लेक्चर कोशिश करूंगा यूट्यूब चैनल पे डालने का। रिकॉर्डिंग पता नहीं किस तरह से हो रही है, पहली बार कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अगर रिकॉर्डिंग हो जाएगी इस तरह से, तो इसको बाद में यूट्यूब पे चैनल पे डाल दूंगा, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। तो हीट की एनर्जी जो है वो जूल्स होती है, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। ये चीज हम हर जगह यूज करेंगे, हीट की यूनिट जूल्स, और केल्विन जो है टेम्परेचर की यूनिट रहेगी। डिग्री सेंटीग्रेड कॉमनली टेम्परेचर यूज होता है, उसको हमें जब भी कैलकुलेशन करना रहता है तो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपन ने वहां पढ़ा रखा है। फिर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, जिसमें कि मरकरी हो, तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के, वो आप मेजरमेंट में सीखिएगा। अभी एक सिंपल सा जो मेथड है जो आपको 11th में सिखाया गया था, वो ये मेथड है। इसके बाद आपने इसमें वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़े होंगे। वाइल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू न्यू आरटी, वेयर आर बार इज इक्वल टू इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, एंड इसको हम लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू आरटी, where V is the specific volume, or the volume per unit mass. Specific volume is volume per unit mass. R is the gas constant. गैस कांस्टेंट की एयर की वैल्यू कौन बताएगा, कौन बता सकता है गैस कांस्टेंट की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है? एनीवन? गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू क्या होती है? सर 8.314 किलो जूल पर मोल। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर। $0.082 लीटर पर मोल। 0.082
0.082 गलत है, कुछ गलत है। अल्टीमेटली यही बोल रहे हो ना, 8.3v1 गैस कांस्टेंट फॉर ईयर। 1/12 होती है सर। आर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? एयर का मोलिकुलर वेट, एयर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एयर? 1 AMU। हाँ, मोलिकुलर वेट कितना होता है एयर का? So 28.97 grams. 28.97 grams. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को इससे डिवाइड कर दो, 8.31 अपन 29। 287 जूल पर केजी केल्विन। हाँ बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही आएगा। ठीक है, 287 जूल पर केजी केल्विन, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, क्योंकि गैस के बारे में जनरली एयर रहेगा तो एयर का आर मालूम होना चाहिए, सीपी मालूम होना चाहिए, उनकी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। ठीक है, तो इट इज आई कैन राइट 0.286 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। बाहर चला गया मेरे से, केजी केल्विन अब जान दो, अब देख लीजिए यूनिट, ये किलो जूल्स में मैंने लिख दिया, जूल्स में करोगे तो 286 287 आ जाएगा। एनीवे, ये भी आपकी किताब में पढ़ा होगा आप लोगों ने। रियल गैस डिविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस, और जब रियल गैस डिविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस तो कौन से इक्वेशन यूज होते हैं, पढ़े आपने किसी ने? रियल गैस में डिविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस तो कौन से इक्वेशन यूज होते हैं? सर ए एंड बी कांस्टेंट्स यूज करके यूज करते हैं ना। पढ़ा? वांडरवाल इक्वेशन यूज होता है। वंडरवाल इक्वेशन बिल्कुल सही है, वंडरवाल इक्वेशन है। इसके अलावा भी और भी इक्वेशंस हैं, तो उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, और ये जो भी टेम्परेचर है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, इनका रिलेशन दिया हुआ है किताब के अंदर तुम्हारे 11th में, तो ये भी अपने को पढ़ना है, मालूम होना चाहिए। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। इट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है आइडियल गैस का, दैट इज -273.15। ये जो ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ 11.3 किताब में 11.3 जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये बता रहा है कि इस टेम्परेचर पे सभी गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। गैस ए, गैस बी, गैस सी, तीन तरह की गैस की लाइन दी है ना। एक गैस ए दिया हुआ है, एक गैस बी दिया हुआ है, एक गैस सी दिया हुआ है। तो ठंडा करेंगे तो -273 पे सब लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये चीज बताया, तो ये दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर आइडियल गैस का, ये मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। तो यही टेम्परेचर हम बेस पॉइंट लेके चलते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो गिवन इन द बुक। 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन भी पढ़ा होगा आप लोग ने, थर्मोडायनामिक्स के पेज में थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन। उसमें क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फिजिक्स का सब्जेक्ट बताया था जिसमें कि हीट और टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन है, हीट और टेम्परेचर का, और इन हीट से एक दूसरे फॉर्म की एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ हम थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ हम थोड़ा डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अपन थोड़ा इंजीनियरिंग वर्ड और जोड़ देते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज द ब्रांच ऑफ बोथ साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ हम एक इंजीनियरिंग वर्ड जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, इट इज द कंसीडर्ड एज द ब्रांच ऑफ बोथ साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग दोनों का ही सब्जेक्ट है ये। ठीक है, साइंस इसलिए क्योंकि इट डील्स विद फंडामेंटल कंसेप्ट में है, और इंजीनियरिंग क्यों है? बिकॉज दिस इज अप्लाइड टू द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स। हम यहाँ पे एप्लीकेशंस भी करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम से हम इसको यूज करेंगे, इसलिए ये क्या है? इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूलाज है, इसके जो लॉज हैं, बहुत पहले बताए गए थे, जबकि मोलिकुलर पिक्चर्स नहीं आए थे। एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, SGF, ये सब पढ़ा होगा ना तुम लोग ने, मोलिकुलर स्ट्रक्चर।
HDPF स्ट्रक्चर, शायद 12th में होगा केमिस्ट्री में, 12th की केमिस्ट्री नहीं, 11th में ही था क्या? 11th केमिस्ट्री में था, चैप्टर 1 HDPF मॉडर्न क्वांटम किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। हाँ, तो यहाँ पे अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। मैं ज्यादातर जो पढ़ाने वाला हूँ आपको रेफर करने वाला हूँ पीके नाग, दिस इज द बुक आई एम गोइंग टू रेफर। इसके अलावा भी आप जो भी थर्मोडायनेमिक्स की किताब है उसको रेफर कर सकते हैं। आई एम हैविंग दिस 5th एडिशन, मेरे पास 5th एडिशन की किताब है यहाँ पे ऑनलाइन, और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की, और जो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 दैट इज डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। तो डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बता ही दिया है। थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट इज इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। और इसमें कुछ हिस्ट्री बताई, हिस्ट्री हम बाद में डिस्कस करते हैं, और बहुत जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा भी आप जो भी किताबें हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन, क्या बता रहा है? थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है that can be observed or measured without changing the composition of matter। मैटर का कंपोजिशन चेंज किए बिना हम उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, जैसे उसका अपीयरेंस, उसका टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी, ये सब चीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में गिनते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये साइंस जो है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी एनर्जी ट्रांसफर और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और इसको सभी फील्ड में तुम्हारे एप्लीकेबल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंटरनल कंबशन इंजन, गैस टरबाइन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, गैस डायनामिक्स, गैस जेट प्रोपल्शन, कंप्रेसर्स, ये सब चीजें हम लोग को अपने इंजन के सारे ये सभी चीजें हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट आए। 3rd ईयर में आपको स्टीम गैस टरबाइन पढ़ना पड़े, आइस इंजन पढ़ना पड़े, हीट ट्रांसफर अलग से सब्जेक्ट है, एयर कंडीशनिंग अलग सब्जेक्ट है, गैस प्रोपल्शन एक अलग सब्जेक्ट है, कंप्रेसर शायद इसी के अंदर आपके 2nd ईयर में ही हो सकता है कि कंप्रेसर भी हो। तो सभी चीजें हमको पढ़नी है। तो इट इज बिलीव्ड दैट थर्मोडायनेमिक्स जो है 1840 में दो शब्दों को मिलाकर के क्वाइन किया गया, बनाया गया। थर्मो और डायनामिक्स दो टर्म्स थे। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो इससे हीट पावर या हीट मोशन, इसका मतलब होता है थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट पावर या हीट इन मोशन। इसके ऊपर सब्जेक्ट है, ऑल्दो स्टैटिक्स हम मानते हैं लेकिन फिर भी कुछ मोशन रहता है, और इसीलिए थर्मोस्टैटिक इज नॉट द करेक्ट वर्ड, थर्मोडायनामिक्स इज द प्रॉपर वर्ड सब्जेक्ट का, और इसीलिए सब्जेक्ट का नाम थर्मोडायनामिक्स रखा गया। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एनर्जी, एंट्रोपी और उनका इक्विलिब्रियम का सब्जेक्ट है। इट कैन बी रिलेटेड विथ ह्यूमन लाइफ, जहां बॉडी, माइंड और स्पिरिट का आपस में जो रिलेशन होता है वही एनर्जी, एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम का यहाँ पे कंसेप्ट लगता है। तो इसको हम 3 E's से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम। 3 E's इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी होता है एबिलिटी टू डू वर्क, एंड एंट्रोपी होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डर और अनअवेलेबल एनर्जी। This is the historical review of the thermodynamics. Principles of thermodynamics have been established. मतलब जो है बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा आप लोग ने, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, तब से चला आ रहा है थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल। और जहां तक है एंशिएंट पीपल्स भी काफी समय से यूज कर रहे हैं। हीट का कंसेप्ट बिल्डिंग्स में लगाते हैं कि हीट कहाँ से आएगी, हवा कैसे चलेगी, कितना हीट फ्लो होगा, तो आग कैसे चल रही है, तो सभी चीजों में पूरे लाइफ में हमेशा से ही यूज होता आ रहा है थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट। वैसे ऑटो साइकिल का जो था पहला दिया था 1650 में,
तो वहां से एक वैक्यूम पंप किया था डेवलप। नेक्स्ट इज द पंप वाइल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये सब चीज आई थी 1679 में। फिर स्टीम इंजन के बारे में आया था डेवलपमेंट, ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो किताब में पढ़ लीजिएगा। देन कार्नोट, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे, फिर भी पढ़ेंगे। कार्नोट लॉ क्या है, 1824 में आया था। हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पढ़ना भी है, ये 1847 में आया। देन केल्विन स्केल 1848 में, जीरोथ लॉ 1847, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 1907 में। दीज आर द हिस्ट्री ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, जो शॉर्ट में आपको बताया है। ज्यादा डिटेल में जाना है तो किताब में पढ़ लीजिएगा। एक किताब है विलियम रैंकिन ने लिखा था 1859 में, दैट वाज द फर्स्ट बुक ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट वाज द फर्स्ट बुक, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स है पहली बुक विलियम रैंकिन की। तो व्हाई वी नीड टू स्टडी द थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हमको क्यों पढ़ना जरूरी है। It is essential study for those hoping for to improve the effectiveness of existing energy resources. Existing energy resources का effectiveness improve करना जो चाहते हैं कि ये हम न्यू एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स, उसके आइडियाज के बारे में हम स्टडी करें, उनके लिए थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करना बहुत जरूरी है। एनर्जी से ही पूरी दुनिया चलती है। अगर फ्यूल के प्राइस कम हो जाए तो सभी चीजें सस्ती हो जाएगी, और फ्यूल के प्राइस महंगे हो जाए तो हर चीज महंगी हो जाएगी। एनर्जी के लिए ही लड़ाई है। इराक पे हमला है, इराक पे कब्जा है, तो एनर्जी के लिए लड़ाई है। हर जगह एनर्जी का ही लेना देना है, और कैसे हम उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे इसकी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए आपको थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। At present 53 are present, including myself. Okay. These are the remarkable quotations on thermodynamics. ये रिमार्केबल कोटेशंस हैं थर्मोडायनामिक्स का। समरफील्ड का सबसे अच्छा लगता है क्वेश्चन। Thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don't understand it at all. The second time you go through it, you think you understand it, except 1 or 2 points. The third time you go through it, you don't understand it, but by that time you are so used to the subject, it doesn't bother you anymore. ठीक है, तो बड़ा ही ये सब्जेक्ट ऐसा लगता है पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ोगे तो लगेगा सब कुछ समझ में आ गया, तीसरी बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि अब हम काम कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट में है, ज्यादा चिंता नहीं करते हो तो काम करना शुरू कर देते हैं। एनीवे, दीज आर द रिमार्केबल कोटेशंस। आपको किताब पे भी मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी पेज पे, रिमार्केबल कोटेशंस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और क्लॉसेस का जो है स्टेटमेंट हमको पढ़ना ही है। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्सल वर्ल्ड इज कांस्टेंट एंड द एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेंड्स टुवर्ड्स अ मैक्सिमम। एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमा इसकी तरफ जा रही है। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी अपना स्टेटमेंट है थर्मोडायनामिक्स में, तो देख लीजिएगा। अपन आगे बढ़ रहे हैं। अगेन क्लास 11th के सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस। It deals with bulk system and does not go into molecular constitution of matter. ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में आता है, माइक्रोस्कोपिक में नहीं जाते हैं क्योंकि एटम का आविष्कार ही नहीं हुआ था जब थर्मोडायनामिक्स की स्टडी शुरू हुई थी। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी नहीं होती है। थर्मोडायनामिक्स की दो तरह, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो तरह से स्टडी होती है। एक है मैक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, दूसरी स्टडी होती है माइक्रोस्कोपिक पे। दो तरह से स्टडी हो सकती है, पहला ये, दूसरा ये। तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं करते हैं, ठीक है।
हम मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करते हैं, इट इज टेकन इन द मोलिकुलर लेवल, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, छोटे लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं। इसको अपन थोड़ा और ऐसा समझते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एटम्स हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये एटम्स हैं, इनकी अपनी अलग अलग वेलोसिटी है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सबकी अपनी अपनी है। तो इन सब का जो मिला करके इनके पोजिशंस, वेलोसिटी, मास, इन सबको मिला करके जो एक एवरेज जो प्रेशर बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, टेम्परेचर बनेगा, मोल्स बनेंगे, इनकी स्टडी है। इनका सबको मिला करके आप जो स्टडी करेंगे इसका, ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे स्टडी होगी थर्मोडायनामिक्स की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी नहीं होती है। माइक्रोस्कोपिक में अगर कम नंबर ऑफ एटम्स कम है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे और हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे तो ये कम हो जाएगा और आपका जो है कांस्टेंट, ऑलमोस्ट जो है सब चीजें कांस्टेंट हो जाएगी और मॉलिक्यूलर का इफेक्ट कम हो जाएगा। कम एटम मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन एक समय के बाद मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और हम इस लेवल पे स्टडी करते हैं, इस पॉइंट पे स्टडी करते हैं जबकि उसका इफेक्ट कम हो जाता है, इस लेवल पे स्टडी करते हैं। दिस इज नोन एज द डोमेन ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर इफेक्ट्स कहलाता है। यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर स्टडी नहीं करना है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना है, तो स्टडी इन दिस लेवल। ठीक है, अगेन ये अपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स की किताब में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक वर्सेस द माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैक्रोस्कोपिक क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है 1.6 आर्टिकल में। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया हुआ है और कुछ एग्जांपल्स लेकर के बताए होंगे इसमें। अपन आगे बढ़ते हैं। So, from the macroscopic point of view, matter is composed of myriads of molecules. Molecules क्या हैं? Composed होते हैं माइक्रोस्कोपिक, हम molecules को कंसीडर करते हैं। If it is a gas, each molecule of a given instant has a certain velocity, position, energy, and for each molecules, these change very frequently as a result of collisions. और ये सब चेंज होते रहते हैं बहुत तेजी से। The behavior of the gas is described by summing up the behavior of each molecules. हर एक के मोलिक्यूल्स का बिहेवियर को हम करके उसको सम अप करते हैं तब स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक स्टडी या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। उसको कहेंगे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। अनदर इज द क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स दैट कंसीडर्स अंडर द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसकी स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा मैक्रोस्कोपिक पे। एंड दिस इफेक्ट्स कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस। ठीक है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लेते हैं। आगे आते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन। प्रॉपर दो कॉलम बना करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो दीज आर द 2 कॉलम्स जिसपे हम डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है। थोड़ा सा उसी चीज को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो है वो मैक्रोस्कोपिक कहलाते हैं। और मोलिकुलर लेवल पे करेंगे कि हर एटम का क्या स्ट्रक्चर, किस तरह से मूवमेंट है, तो वो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा इसको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा या मैं यूट्यूब में मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, कोई पुराने वीडियो में मिल जाएगा। ये भी मैं अगर अपलोड करता हूँ तो ये भी आपको मिल जाएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं अपन। यस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में केमिस्ट्री में, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। तो मैं कुछ लोगों से पूछना शुरू करता हूँ कि कौन बताना चाहेगा।
सिस्टम्स और सराउंडिंग्स के बारे में। तो चिन्मय है, चिन्मय, हेलो चिन्मय, देवेंद्र, आर यू देयर? देवेंद्र है? देवेंद्र, देवेश, देवेश, यस सर। हाँ Yes, बताओ sir. ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है? सर सिस्टम वो होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन देखा जाता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस का, और सराउंडिंग वो होती है जो हाँ, थर्मो मतलब सिस्टम के बाहर रहती है। दो तरीके से रहती है, ओपन और क्लोज। ओपन में क्या रहता है, मास और एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, और क्लोज में ना हाँ, एनर्जी तो होती है पर मास नहीं हो पाता है एक्सचेंज, ऐसा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे से पढ़ा तुमने, वेरी गुड। थैंक यू तो सर। सिस्टम जो होता है, कोई भी चीज की हम स्टडी करते हैं, यूनिवर्स में कोई भी चीज की स्टडी कर लें, वो जो भी हमको समझ में आता है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं ओपन स्पेस में भी, ठीक है ना। तो वो हमारा सिस्टम होगा जिसकी हमको स्टडी करनी है, उसको हम सिस्टम बताएंगे। और जो उसके बाहर है दैट इज द सराउंडिंग, और द डिफरेंट जो वाल है जो सेपरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री। तो यूनिवर्स इज द सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड द यूनिवर्स। तो यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्स, यूनिवर्स इज द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला लिया जाए तो वो यूनिवर्स बन जाएगा, वो पूरा यूनिवर्स है। तो अपन बाउंड्री जो है दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, उसको बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी स्पेस में हमने ऐसे ऐसे कोई भी जगह सोच लिया, इसके अंदर की स्टडी करनी है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया, दिस इज द सिस्टम। ये ना इमेजिनरी जो है बाउंड्री जो है दैट कैन बी इमेजिनरी या फिक्स्ड या वेरिएबल, किसी भी तरह की बाउंड्री हो सकती है। बाउंड्री जरूरी नहीं कि फिक्स बाउंड्री हो, जरूरी नहीं कि वेरिएबल बाउंड्री हो, जरूरी नहीं कि कोई चीज से बनी भी हो। हमने सोच लिया कि हमको इस पर्टिकुलर रीजन की स्टडी करनी है, तो ये हमारा बाउंड्री हो गया। जिस चीज की स्टडी करनी है ये हमारी बाउंड्री हो गई। इसके अंदर का जो चीज है वो सिस्टम हो गया, और इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग्स है। इसके बाहर जो है वो उसको कहेंगे सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सिस्टम अंदर का जो हो गया, सराउंडिंग्स ये हो गया, और ये जो है जो लाइन सेपरेट करी दोनों को, ये बाउंड्री हो गया। द बाउंड्री में भी अगेन मैं बता देता हूँ, बाउंड्री में भी फिक्स्ड, मूविंग, वेरिएबल, कैसा भी हो सकता है बाउंड्री, और कोई जरूरी नहीं कि किसी चीज से बना हुआ हो। हमको जिस की स्टडी करनी है दैट इज द सिस्टम, ठीक है। इसी चीज पे हम फोकस करेंगे। और इसका क्लासिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है थर्मोडायनामिक्स की किताब में, आपको यहाँ पे आर्टिकल 1.7 पे मिल जाएगा, ठीक है नाम में। तो दो तरह के अप्रोच होते हैं, ठीक है, दो तरह के अप्रोच लिए जाते हैं, लिखा है कि नहीं। A thermodynamic system is defined as the quantity of matter or a region in a space upon which attention is concentrated in the analysis of problem। यहाँ आप बहुत गौर करिएगा, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्वांटिटी ऑफ मैटर या रीजन इन स्पेस। थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है उसको डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी कितनी, जो कोई क्वांटिटी पे भी हम फोकस कर सकते हैं, या रीजन इन द स्पेस पे भी फोकस कर सकते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन किस पे है उसको हम सिस्टम कहेंगे। तो दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, क्वांटिटी और रीजन, ठीक है। अब हम इसी को डिटेल में समझते हैं। पहले कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच एंड फिक्स्ड क्वांटिटी अप्रोच, दो चीजें हैं, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, फिक्स्ड क्वांटिटी अप्रोच। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये एक कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें से कोई भी मैटर आ रहा है जा रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा ये वॉल्यूम फिक्स है, हमने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है, इसके बस इसके इस वॉल्यूम की हम स्टडी करेंगे। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। कंट्रोल वॉल्यूम इज फिक्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच में बाउंड्री फिक्स होगी, the shape of the control volume does not change,
mass, momentum and energy are allowed to cross the boundary in the open system, और इसके एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड क्वांटिटी अप्रोच। फिक्स्ड क्वांटिटी अप्रोच कि जो ये जा रहा है, यहाँ पे आपका शेप ऐसा था, क्वांटिटी सेम है, उसका क्वांटिटी शेप चेंज हो गया, फिर यहाँ पे कुछ और शेप हो गया, शेप बदलता जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी सेम है। तो हम क्वांटिटी पे ही फोकस कर रखे हैं, हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस है। और इस अप्रोच को हम जनरली फिक्स क्वांटिटी अप्रोच को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, और ज्यादा प्रेफर करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। यहाँ पे अपन कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिक्स क्वांटिटी अप्रोच का मतलब होता है दैट द टाइम with the time the boundary of the system may change but the mass remains same। यहाँ पे मास जो है वो सेम रहेगा। मास जो है बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, मास बाउंड्री के अंदर रहेगा, जैसे कि क्लोज्ड सिस्टम में होता है। वर्क एंड एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। तो ज्यादातर सिस्टम क्या है कि ओपन सिस्टम होते हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच होता है, और क्लोज्ड सिस्टम होगा तो फिक्स्ड क्वांटिटी पे काम कर सकते हैं। ओके, तो here is the two system जहाँ पे हमने बाउंड्री अलग अलग ली है। बाउंड्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये जो चेन लाइन है ना, डॉटेड इस तरह से रेड रंग की लाइन जो है इस तरह से बना करके बताया है, ये बाउंड्री है अपनी। यहाँ पे दिस इज द बाउंड्री, बड़ा वॉल्यूम लिया है तो बाउंड्री यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, दैट इज देयर इज अ फिक्स्ड बाउंड्री, इट इज अ फिक्स्ड बाउंड्री। और यहाँ पे क्या किया है, दूसरे वाले फिगर में अंदर वाले को हमने वॉल्यूम ये बाउंड्री लिया है। अंदर टोटल लाइन दिख रही है आपको रेड रंग की, कलर चेंज कर देंगे आपकी पेन का, इन कलर कर दूं। ये जो है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर रहा है और चेन लाइन ये बनी हुई है, तो ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इट इज अ मूवेबल बाउंड्री, ये जो है ये दिस इज द मूवेबल बाउंड्री, जबकि यहाँ पे क्या था, इट इज वाज अ फिक्स्ड बाउंड्री। तो दोनों में बाउंड्रीज अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी मर्जी है कि हमको बाउंड्री कौन सी लेनी है। हम अपने हिसाब से बाउंड्री लेते हैं और अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, हमको क्या कंसीडर करना है क्या नहीं करना है, बाउंड्री हम अपने हिसाब से लेंगे। सिस्टम हमको क्या लेना है ये हमारा अपने मर्जी होता है, सिस्टम क्या लेना है, सराउंडिंग्स क्या है किसको लेना है ये हमारी मर्जी होती है। तो जो एनालिसिस करता है उसकी मर्जी के हिसाब से सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को डिसाइड किया जाता है। So thermodynamics is concerned with the interaction of a system and its surrounding, or one system interacting with another. A system is said to interact with its surrounding when it starts transferring across its boundary। तभी वो इंटरेक्ट करेगा जबकि आइदर वो मास को ट्रांसफर करे बाउंड्री से, मास क्रॉस करे बाउंड्री से, या एनर्जी क्रॉस करे, या दोनों क्रॉस करे, तभी उसको इंटरेक्शन कहा जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स जो है इंटरेक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जहां मास का, एनर्जी का या दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। इसमें कुछ और फिगर्स होंगे। यस, तो थर्मोडायनामिक्स सिस्टम इज द स्टडी ऑफ, पहला तो ये पहला वाला पुराना वाला बताया है, पुराने वाले को एक और चीज बताना था, इसमें ग्राफ को इंक्लूड किया है, पुराना हटा दिया गया इसमें। ये बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री को समझाया है, बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो सिस्टम भी आपने पढ़ रखा है कि तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। वन इज द ओपन सिस्टम, another is the closed system, third is the isolated system। So open system, closed system and isolated system। So what is the open system? ओपन सिस्टम जो होता है उसमें से मास का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी, हीट एंड वर्क आर द बोथ द फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। हीट एंड वर्क आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बाहर निकल रहा है मेरा लिखा हुआ। हीट मतलब ये जो है एनर्जी के फॉर्म में, हीट एंड वर्क, दे आर द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दो फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, आप देख सकते हैं। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं स्लाइड में, देख लेना, एग्जांपल पढ़ लेना।
बिना एग्जाम्पल्स के, क्योंकि 11th में एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, क्लास 11th में एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्लोज्ड सिस्टम में देयर इज नो मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है। देयर इज ओनली हीट इंटरेक्शन, दैट इज हीट एंड वर्क। द हीट कैन क्रॉस द बाउंड्री, द वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री। तो देयर इज इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क, हीट और वर्क का इंटरेक्शन है अक्रॉस द बाउंड्री, मास का इंटरेक्शन नहीं है, उसको कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के एग्जांपल्स हैं प्रेशर कुकर, बम, कैलोरीमीटर। तो एग्जांपल्स हैं, आपको क्लास 11th में नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जहाँ की देयर इज नो मास ट्रांसफर, मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है अक्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है अक्रॉस द बाउंड्री। तो अगर एनर्जी और मास का इंटरेक्शन नहीं होगा तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो इसके एग्जांपल यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, तो देर कोई मास का ट्रांसफर, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। या थर्मोफ्लास्क को एक आइडियल केस में हम मान सकते हैं कि ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी चीजों की स्टडी हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स में ठीक है क्लासिफाई करते हैं, लेकिन ऐसी चीज का क्या स्टडी करना जिसमें कि कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर का या मास ट्रांसफर का होना चाहिए, तो उसकी स्टडी होती है, या सभी का ट्रांसफर हो तो उसकी स्टडी होती है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये डायग्राम से समझाया हुआ है, व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज द क्लोज सिस्टम एंड व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। एक जार ले लिया है, जार में से अगर कुछ मास निकल रहा है इट इज ओपन सिस्टम। अगर जार को बंद कर दिया है या बीकर को बंद कर दिया है इट बिकम्स द क्लोज सिस्टम, और अगर उसको इंसुलेशन कर दिया है इट बिकम्स द आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मल पावर प्लांट है, दिस इज द थर्मल पावर प्लांट। पता नहीं आपको इसमें एनिमेशन कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी मर्जी है हम किसको सिस्टम माने। 2-3 तरह के सिस्टम लिए जा सकते हैं और इसमें अपन स्टडी कर सकते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या है। तो इसमें मतलब सभी का कंपोज्ड है कि जो वाटर है, वाटर सर्किट में फ्लो कर रहा है, पानी है, बॉयलर से टरबाइन में जाता है, कंडेंसर में जाता है, फिर पंप में जाता है, फिर वापस बॉयलर में चला जाता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ there is a closed system also, there are some open system also. So there is a closed system, there is some open system। ये पानी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी आ रहा है पंप से और जो भी कंडेंसर से निकाल करके कूलिंग टावर में जा रहा है। कूलिंग टावर में आप देख सकते हैं पानी जो है इवोपरेट हो रहा है, मास जो है यहाँ से निकल रहा है और एटमॉस्फेयर में जा रहा है मास। तो देयर इज अ मास ट्रांसफर, सो इट बिकम्स द ओपन सिस्टम। देयर इज सम क्लोज सिस्टम, जैसे रेफ्रिजरेटर में क्लोज साइकिल है, तो जैसे ये भी क्लोज सिस्टम है। तो मतलब जो सिस्टम होता है थर्मोडायनामिक्स में ओपन एंड क्लोज का कंपोजिशन कंबाइंड करके भी सिस्टम बनते हैं, ये इसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये आपने पढ़ा होगा। फिर अगले 11th की क्लास की किताब में आ जाते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसको हम बता सकें उसको कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, दीज आर द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इनको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। किसी भी स्टेट के वो डिफाइन करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज को बताना जरूरी नहीं होता है। एक और चीज क्या लिखी है, इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है, हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके भी सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके भी हम सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है थर्मोडायनामिक्स की किताब में, पिगेनाक की किताब में, आर्टिकल 1.8 में पढ़िएगा। इसमें पहले सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं। स्टेट क्या होता है,
कि हम किसी चीज की प्रॉपर्टी को बताना है तो उसको स्टेट कहेंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो पाथ क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और साइकिल क्या होता है, ये यहाँ डिफाइन किया हुआ है। मैं फिर मतलब ये डेफिनेशन है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक और ग्राफ के द्वारा बता देता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। कोई भी गैस किसी भी जगह पे रुकी हुई है तो ये इसका स्टेट है, स्टेट 1, जहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर प्रेशर वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो आपका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू RT होता है, आपको मालूम है। तो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, जो भी गैस है, जो भी आपका गैस है, तो गैस के लिए या एयर के लिए ये फिक्स हो जाएगा, ड्राई एयर के लिए। तो वैसे ही ये स्टेट 2 है, यहाँ पे अपना स्टेट 2 है, यहाँ पे अपना कुछ प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, स्टेट 2 पे प्रेशर वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, तो इट इज स्टेट 2। तो वी आर हैविंग स्टेट्स, ये अलग अलग स्टेट है, जहाँ प्रेशर वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो अपने को एक स्टेट, जैसे यहाँ पे हमको है तो दिस इज द अनदर स्टेट, वी कैन डिफाइन दिस एज स्टेट 3, इसको स्टेट 3 बता सकते हैं। यहाँ से 1 से 2 तक जाने के लिए कोई भी पाथ हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ से यहाँ तक चेंज कर रहा है, इट इज चेंजिंग द स्टेट। कोई भी स्टेट हो सकता है, किसी तरह से चेंज कर सकता है, तो ये स्टेट चेंज कर सकते हैं, और भी बड़ा ऐसा करके लूप करके चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द स्टेट, और ये जो है इसको दिस इज आपका तो पाथ, इसका पाथ है, ये अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, दे आर डिफरेंट पाथ, दे आर डिफरेंट पाथ। 1 से 2 जाना है तो कौन से पाथ से जाएं, दैट आर कॉल्ड द पाथ। और अगर यहाँ से चल करके वापस हम लौट करके 1 पे आ जाए, 1 से चलें और वापस लौट करके हम 1 पे आ जाएं तो उसको कहेंगे साइकिल। 1 पे चलें और 1 वापस लौट के वहीं पे आ जाएं तो साइकिल। एक होता है प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, जहां पे चेंज ऑफ स्टेट तो हो रहा है 1 से 2 हम जा तो रहे हैं, लेकिन इसके इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी वेल डिफाइंड है। ये सब जितने पॉइंट्स हैं ये वेल डिफाइंड है, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस, दैट इट इज कॉल्ड द प्रोसेस। प्रोसेस में सारी चीजें डिफाइंड होती है, इंटरमीडिएट पाथ, फिर उसमें आप पाथ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इंटरमीडिएट डिफाइंड है तो वो पाथ है, मतलब अगर इंटरमीडिएट डिफाइंड है तो प्रोसेस कहलाएगा, अगर इंटरमीडिएट डिफाइंड नहीं तो पाथ है। तो अगर कोई चीज यहां से यहां तक जाने के लिए जितना प्रॉपर पाथ से जाएगी उसको कहेंगे प्रोसेस, और दैट इज द पाथ फंक्शन। और अगर इससे एंड स्टेट पे डिपेंड करता है तो उसको कहेंगे पॉइंट फंक्शन। तो एंड स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ और पाथ का कोई लेना देना नहीं है तो उसको कहेंगे पॉइंट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन में आपको पढ़ना है व्हाट इज द पाथ फंक्शन, व्हाट इज द पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, ये भी पढ़ना है। पॉइंट फंक्शन होता है कि वो एंड स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, अगर पाथ अलग हो गया तो चीजें बदल जाएगी। जो हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शंस, जबकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, तो उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होती है, और साइकिल्स के प्रोसेस में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। There are certain identified processes. Isochoric process means constant volume process. There is a isochoric process. Isochoric process होता है, that is called the constant volume process. Isobaric process है, there is a isobaric process that is called the constant pressure process. Isothermal process is a constant thermal process. Isentropic process is the constant entropic process. Constant entropic process को अपन isentropic process कहेंगे। Isenthalpic process constant enthalpy process. Isenthalpic process constant enthalpy process है। तो these are the some defined processes। ये प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ साइकिल्स के बारे में बताया हुआ है, कुछ साइकिल्स के बारे में बताया हुआ है। तो कार्नोट साइकिल इज वन ऑफ द साइकिल, ऑटो साइकिल इज अनदर साइकिल, डीजल साइकिल, फ्यूल साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल, दीज आर द साइकिल्स। तो साइकिल्स को डिफाइन किया हुआ है कि 1 से शुरू कर रहा है, 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया और वापस 1 पे आ गया, तो इट इज कॉल्ड द साइकिल। इसको हम साइकिल कहेंगे। अगेन 11th क्लास की किताब में पढ़ा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी whose value depends on the quantity और साइज ऑफ मैटर। साइज पे डिपेंड करता है
उस पे मैटर की साइज पे डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो उस पर डिपेंड नहीं करता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कुछ मेरे लिखने में गलती हो गई है, या इंटेंसिव और बढ़ाना चाहिए था, तो कुछ गलत लिख दिया मैंने। इट शुड बी इंटेंसिव, हियर इट शुड बी इंटेंसिव, ऐसे कर लीजिएगा इंटेंसिव, इंटेंसिविटी में नहीं, दोनों में एक ही चीज मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऊपर वाली बात को दोबारा लिख दिया, नीचे वाली बात को नहीं लिख पाया यहाँ पे। तो इसमें क्या किताब में लिखा है, those properties which do not depend on the quantity or size of matter present are called the intensive property. Examples are the temperature, density, pressure. So example है temperature, density and pressure. Temperature, density and pressure. These are the example of intensive property. For example, volume है, वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या हो गया, डेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी प्रॉपर्टी हो गई। एंथैल्पी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन एंथैल्पी को हम पर यूनिट मास कर देंगे तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हो जाएगा। पर यूनिट मास मींस स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंथैल्पी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक एंथैल्पी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यही चीज आगे अपन पढ़ लेते हैं अपनी किताब में। आर्टिकल 1.8 में यहां समझाया हुआ है इस चीज को, इस जगह पे आप पढ़ लीजिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं वो यहाँ समझाया हुआ है। इंटेंसिविटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनेमिक्स की किताब में फिजिक्स में भी समझाया था शायद, आपको देख लीजिएगा। देन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम मतलब आपस में पूरी तरह से मिले हुए हों, कुछ चीजें आपस में बहुत अच्छे से मिली हो, दैट इज होमोजेनियस, और जब आपस में अच्छे से न मिले हों तो हेटेरोजेनियस। ठीक है, जैसे एयर में मॉइस्चर जो होता है, कहीं पे ज्यादा मॉइस्चर, कहीं पे कम मॉइस्चर है। मतलब यहाँ पे अभी आपको ना बारिश है तो यहाँ पे ना बहुत हाई ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा कंटेंट। वहीं पे अगर आप अभी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ ड्राई सीजन है या समर चल रहा है तो वहां पर मॉइस्चर कम होगा। मॉइस्चर थोड़ी थोड़ी सी दूरी में बदलता रहता है, तो मॉइस्चर सेम नहीं रहता एयर के अंदर, तो वो क्या हो गया, हेटेरोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम मतलब ड्राई एयर है, ये दो गैस को मिलाया तो आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो दैट बिकम्स द होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे हमने भी कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं नीचे, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। देन आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा कि जब कोई दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे है तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझाया हुआ है। इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसे बाड़ रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर रखी है, यहाँ कुछ पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस बट इट इज इन इक्विलिब्रियम। इट इज इन इक्विलिब्रियम, छोड़ दिया इसी पोजीशन पे है पड़ा हुआ, ये गिर नहीं रहा है, इट इज द इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस की दोनों वेट बराबर है। दोनों वेट बराबर होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई जरूरी नहीं है, बट ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अगर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, if the macroscopic variables does not change with time, it is called equilibrium. अगर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जो हैं, प्रेशर, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा अलग है, जो किताब में दिया हुआ है। यहाँ एक नया टर्म दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या नया टर्म दिया हुआ है,
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एक नया टर्म दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ा अलग होता है। इट मींस वी शुड हैव अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तीनों कंडीशन मीट करेगी तब हम कहेंगे इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। जब तीनों कंडीशन मीट करेगी तो ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अगर तीनों कंडीशन मीट नहीं कर रही तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है। इसी चीज को डायग्राम से बताया है कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तीन कंडीशंस मीट करेंगी तो हम कहेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल। तो रिएक्शंस जो हैं दे आर द, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। जब दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो इट विल कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाए तो उसको कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम अचीव्ड। ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जैसे ये एक में हाई प्रेशर में गैस है, इस चैम्बर में हाई प्रेशर में गैस है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे वैक्यूम है, मान लीजिए यहाँ वैक्यूम है। जैसे ही हम इस मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे, मेम्ब्रेन यहाँ बीच में लगा हुआ है, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे तो ये जो है गैस यहाँ पे एक्सपेंड करेगी। तो गैस एक्सपेंड करके थोड़ी सी देर के बाद पूरे में सेम प्रेशर पे गैस हो जाएगी। इसको कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सभी जगह पे सेम प्रेशर है तो उसको कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम बताया है कि एक हॉट बॉडी है, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। दोनों बॉडी को आपस में जब मिलाया तो यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन हुआ हीट का और थोड़ी देर के बाद ये पूरी बॉडी में सेम टेम्परेचर हो गया। अब कोई भी एक दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, हीट ट्रांसफर बंद हो गया एक दूसरे को, तो ये कहेंगे इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन किसी भी मोड से वो हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सो इट कम्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस मीट करेगी तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। तीनों कंडीशंस मीट करनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको कहेंगे फाइनाइट टाइम थर्मोडायनामिक्स। हम यहाँ पे सभी जितनी भी स्टडी करते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्टडी करते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्टडी नहीं करते हैं, समय के साथ चेंज हो रहा है हीट, मान लीजिए हीट फ्लो कर रहा है समय के साथ, तो उसको फाइनाइट टाइम थर्मोडायनामिक्स में डाला जाता है। कुछ चीजें आप पढ़ोगे इसके बारे में, फाइनाइट टाइम थर्मोडायनामिक्स भी जब हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। और बहुत स्लो प्रोसेस होता है, दैट इज क्वासी इक्विलिब्रियम, मतलब ऑलमोस्ट, क्वासी मतलब ऑलमोस्ट। तो जो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम है उसको हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम की स्टडी में कि टाइम के साथ बहुत माइनर चेंज हो रहा है तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे, वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ा भी होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मींस ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इनफाइनाइट स्लोनेस इज द फीचर ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये अगर जैसे ये प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए इट शुड बी अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तभी ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स फिक्स हो पाएंगे। अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स फिक्स नहीं हो पाएंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे ही स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। इट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देन प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो होमोजीनियस हो, ठीक है, होमोजीनियस हो वो उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मास एक जैसा हो, तो जैसे एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, तो हर जगह एक जितना भी प्रेशर है तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। स्टीम और वाटर को भी हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि कहीं पे भी देखेंगे स्टीम में भी वाटर का जो कंपोजिशन है उतना ही है और वाटर के अंदर भी वही कंपोजिशन है। तो ये भी एक होमोजेनियस प्योर सब्सटेंस कहलाता है।
The true property rule. This is one of the important thing. True property rule. अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, तो उसकी प्रॉपर्टी हम ट्रू प्रॉपर्टी रूल से बता सकते हैं। मतलब उसके लिए हमको सिर्फ दो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है। वी हैव टू डिफाइन ओनली द ट्रू प्रॉपर्टीज। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अपने को ट्रू प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रू प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपको बताया था प्रेशर और वॉल्यूम अपन ने डिफाइन कर दिया, उससे अपन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर बाय यूजिंग दिस टू थिंग्स। तो जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको टू प्रॉपर्टी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टी से हम बाकी सारी प्रॉपर्टी, वंस टू प्रॉपर्टीज आर नोन, यहाँ लिखा हो वंस टू प्रॉपर्टीज आर नोन द अदर प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड, दैट इज कॉल्ड द ट्रू प्रॉपर्टी रूल। तो जनरली जो है अपन अभी प्योर सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ पे हमारे को वी विल यूज द ट्रू प्रॉपर्टी रूल। तो ट्रू प्रॉपर्टी रूल्स को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कंटिन्यूम अपन ने पढ़ चुका है, ये ग्राफ अपन ने पहले पढ़ चुका है, तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी यही चीज दी हुई, ठीक है, 11th में पढ़ा होगा आप लोग ने। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द थर्मोडायनामिक्स? Thermodynamics often tell us examples where a process will occur, but how fast it will occur, it does not tell. It can often provide a quantitative description बताता है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताता, ज्यादा अपने को केमिकल या फिजिकल फिनोमिना में नहीं ले जाता, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब बताता है। तो ये अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, पढ़ लीजिएगा। तो चैप्टर 1 आप पीके नाग से पढ़ लीजिएगा। एनीवे, आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। इसके आगे पीके नाग की किताब से आप लोग हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर पढ़ लीजिएगा। तो मैं अगले क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, या आप मेरे पुराने जो भी यूट्यूब के लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का और स्टडी करता हूँ। सर आपके चैनल की लिंक ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डला हुआ भी है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डला हुआ है, शायद आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डला होना चाहिए, ठीक है। और कौन से चैनल पे कहाँ पे डालने वाला हूँ वो भी बता दूंगा, वो लिखा हुआ शायद जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। फिर से मेरे को और आपको प्रोसेस और ये सब के बारे में स्टडी करके और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स फिर शुरू करूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। अटेंडेंस में देख लूंगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay.